Hello everyone, welcome to the Manolo classes. Today is 8th of June 2024. You are watching with Naresh Sharma, and now let's start with the thought of the day. The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. So it means अगर आपकी लाइफ का कोई सबसे बड़ा एडवेंचर है तो वो है कि आप अपनी लाइफ को अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग जिए. इट मीन्स ड्रीम्स देखें और फिर उनको फुलफिल करें. अब उसके लिए आपको कीमत तो पे करनी पड़ेगी. इट मीन्स यू हैव टू पे द कॉस्ट टू लिव द ड्रीम्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस सेशन. नट प्रथा और नट प्रैक्टिस इज एसोसिएटेड विद which one of the following option? So sale of girls, widow remarriage, sale of animals for sacrifice, sale of boys for marriage. So actually nat pratha or nat practice is associated with some scheduled tribe communities in various states like Rajasthan, Madhya Pradesh and Gujarat. These are the states where are some communities who practice the nat pratha, where girls are sold to the boys or the men so they can marry with those girls, and in various cases these girls are resold in the market, and they are even also sold to the prostitute house on later stage. So the question number 2 is, who is the current chief of National Human Rights Commission? In the last day session, we discussed about some points regarding the National Human Rights Commission, that it has asked some reports from the states where nat pratha is being practiced. So here you should also be aware about nat pratha and also the National Human Rights Commission. So जब भी कुछ ऐसे करंट अफेयर की न्यूज होती है तो you should have some extra efforts. So उसका बैकग्राउंड, उसके करंट इश्यूज को आप खुद से भी एक बार स्टडी करें. So this is Arun Kumar Mishra, who is the current head of the National Human Rights Commission. The voter turnout in 2019 Lok Sabha elections. Yesterday we also talked about the voter turnout data which had been released by the Election Commission of India, and there was a report in the Hindu regarding the same. So you have to find out the voter turnout in 2019 election. So it was 67.4%, but this year there has been some reductions in the voter turnout data when the final data will be released by the Election Commission of India, because the data has been released although by the Election Commission of India, but still it has not included paper postal ballots. So अभी postal paper ballot का जो data है वो भी उन्होंने include नहीं किया है, वो भी under counting है. तो जब वो भी आएगा तब हम इस पर बात करेंगे. The other election commissioners are, because in yesterday's session we discussed that the chief election commissioner and other election commissioners went to the office of President of India and they submitted the report of elections, and they also provided the report where which included the list of all the elected MPs. Or when this list is submitted by the Election Commission of India to the President of India, then the formal process of construction or the constitution of Lok Sabha is started. So though who are the current other election commissioners? You know, there are 3 election commissioners in the Election Commission of India. One is Chief Election Commissioner and there are 2 other commissioners. So these 2 are Gyanesh Kumar and Sukhveer Singh Sandhu. So who is the Chief Election Commissioner of India? Can you tell me? Write down its answer in the comment box. Under the scheme, annual MP LEDs fund entitlement per MP constituency is. Yesterday we also discussed about the MP LEDs fund, MP LEDs scheme. In this scheme, various MPs, member of parliaments, are assigned some funds that they can recommend the district collectors or the district authorities to utilize the fund in the directed schemes or in the directed areas of development. It means under such schemes, MPs can direct the district administration to invest the fund in a road construction or tap water installation plants or any such kind of activity.
So under this scheme, the member of parliaments are assigned 5 crore rupees every year, and they can suggest the district authorities to utilize the fund in certain directed areas. It means next question is, who is the current chief election commissioner? Chief information commissioner. Because in yesterday's session, the Delhi High Court directed the chief information commissioner that you are not the authority to direct the MP scheme or the authorities or the MPs that how they should utilize the fund. So he is Hira Lal Samaria, who is the current chief information commissioner. Now we are going to discuss today's current affairs. So first one is, President invites Modi to form new government swearing in tomorrow. It means the President of India, this is a formal process under the Constitution of India, that the President of India invites the leader of the party which got the highest vote, or that is 50% plus 1 plus 1. When any party get such kind of higher votes, voter turnout, or the seats in the Lok Sabha, then the President of India invites the party, and the party send a leader on the consent by the all members. So now the process of swearing in will be started, and it has been scheduled for tomorrow, that is on Sunday 9th of June. So what are the key points in this आर्टिकल? दैट प्रेसिडेंट पूर्व ने इनको इनवाइट किया कि आप आकर के जो है थर्ड टाइम आप अपनी सक्सेसिव टर्म को यूज से जो है स्टार्ट करेंगे, और इसमें गवर्नमेंट बन रही है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की, दैट इज एनडीए, जहाँ की उनकी पार्लियामेंट्री मीटिंग्स वगैरह हुई और उन्होंने अनाउंस किया। अब इसमें कौन कौन इसके अलायंस में पार्टनर्स हैं एनडीए के? तो चंद्रबाबू नायडू है, उनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी, और ये पार्टी अभी जो है आंध्र प्रदेश में भी गवर्नमेंट फ्रेम कर रही है, और उसके जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश होंगे चंद्रबाबू नायडू। सो एक पॉइंट आपके लिए ये हो गया। दूसरा है नीतीश कुमार ऑफ जनता दल यूनाइटेड, तो नीतीश कुमार भी इनको जो है इस अलायंस में है, प्री पोल अलायंस था इनका, और ये ऑलरेडी सीएम है बिहार के। और फिर महाराष्ट्र के शिवसेना चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, उनका भी इनको क्या मिला, जो है कंसेंट मिला, समर्थन मिला। ठीक है, बाकी अदर कुछ और भी इंडिपेंडेंट या अदर पार्टीज हैं, उनका इसमें क्या है मिला है। तो इलेक्शन जो होते हैं, जनरल इलेक्शन 5 इयर्स में एक बार होते हैं, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन से कुछ क्वेश्चंस या कुछ पैसेजेस फ्रेम कर दिए जाए, वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाए। बाकी इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो है जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट्स में भी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, मीन जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे उसके बेसिस पर गवर्नमेंट हम बना सकते हैं, लेकिन कंट्री हमेशा कंसेंसस से चलता है, मीन सबका क्या चाहिए, उसमें कंसेंसस हमको चाहिए। ठीक है, सो ये उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें कही। बाकी सर्वतंत्र संभाग मीन सबके साथ मिलकर के काम करना है, ऐसी कुछ बातें यहाँ पर हुई हैं। बाकी इसमें मेन पॉइंट्स क्या है कि आप लोकसभा के रिगार्डिंग में जितना भी लोक मीन्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस हैं, क्या होती है लोकसभा, कौन स्पीकर होता है, क्या पार्लियामेंट होती है, ऐसे पॉइंट्स को आप पहले से ही प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम द लोकसभा इलेक्शंस और अबाउट द लोकसभा इन योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। नाउ देयर इज अ न्यूज अबाउट दैट आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज्ड। अभी आरबीआई ने क्या किया है कि अपनी जो रेपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं किया है, और जीडीपी के ग्रोथ के लिए उन्होंने फोरकास्ट किया है, प्रिडिक्ट किया है दैट इंडिया की जीडीपी 7.2% रहने वाली है। कौन से फाइनेंशियल ईयर में? 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो इसमें जो जीडीपी ग्रोथ है वो इतनी रहने वाली है, 7.2%। क्या क्या इसमें है? अब मैं अगर बात करूं तो जो रेपो रेट है, रेपो रेट वो होती है जिसमें जो बैंक्स होते हैं वो मीन्स जो है लोन लेते हैं जो है आरबीआई से, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं। सो अगर आरबीआई अपने यहाँ से जो मनी सप्लाई हो रही है अदर बैंक्स के लिए, जैसे कि एसबीआई या पीएनबी या अदर बैंक्स, अगर आरबीआई यहाँ से पैसा महंगा कर देगी, मीन्स अगर मान लो पहले 5% का रेपो रेट था उसको 7% कर दिया, तो अब ये इनको भी मीन्स जो मनी मिलेगा उस पर भी इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, और ये जब मार्केट में अपने किसी क्लाइंट्स को लोन देंगे
तो वो भी उसको क्या करके देंगे, हायर इंटरेस्ट रेट पर देंगे। अब जब ये हायर इंटरेस्ट रेट पर देंगे तो क्या होगा कि लोन का जो अमाउंट है, लोन लेने वालों की जो भीड़ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जब लोन लेने वालों की भीड़ रिड्यूस होगी तो लोगों की पॉकेट में मनी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोगों की पॉकेट में जब मनी कम होगा तो वो मार्केट में भी क्या होंगे, कम जाएंगे, मार्केट में परचेज करने के लिए कम जाएंगे। मींस मार्केट में क्या कम हो जाएगी, डिमांड। और जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो एक फैक्टर बनता है वो इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन के देयर आर सम अदर फैक्टर्स आल्सो, बट डिमांड इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स which is responsible for the higher inflation। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि आपके पास में यहाँ एक बनाना की शॉप है और बनाना बिकता है सपोज करो 50 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब एक बनाना की शॉप है, उसके पास में ओनली 1 केजी बनाना है और उस बनाना को परचेज करने के लिए 100 पीपल पहुंच गए और बाकी और कहीं बनाना है नहीं। तो ये 100 पीपल अगर सपोज करो उसने कहा कि भाई मैं 50 रुपीज पर केजी बेच रहा हूँ, ए नाम का व्यक्ति पहुंच गया मुझे दे दो। बी वाले ने बोला कि भाई ऐसा है मैं आपको 80 रुपीज दूंगा इस पर 1 केजी बनाना के, मुझे दे दो, ठीक है। और कोई सी क्या बोलेगा, मैं भाई आपको 100 रुपीज पर केजी दूंगा। सो डिमांड इज वेरी क्रूशियल फॉर इन्फ्लेशन के लिए। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, रेपो रेट वगैरह सबको देखने के लिए हमारे पास एक कमेटी होती है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। जो किसकी कमेटी है, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। और इन्होंने इस बार रेपो रेट को कितना रखा है, 6.7%। देखो रेपो रेट को लेकर के मोस्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बिकॉज रेपो रेट कभी फिक्स तो होती नहीं है, हो सकता है कभी 3 मंथ में चेंज हो जाए, 5 मंथ में चेंज हो जाए, तो इसलिए वो ये नहीं पूछता कभी करंट में रेपो रेट क्या है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी इसमें मेन पॉइंट्स जो थे मैंने आपको डिस्कस किए। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का जो हमारे यहाँ टारगेट रहता है वो 4% का रहता है। 4% में प्लस या -2, इट मींस मिनिमम इन्फ्लेशन हमको, अगर देखो इस 4 में से मैं 2 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। मींस मैक्सिमम हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 6% तक जा सकता है। अगर इस 4 में से -2 करूंगा, मैं -2 करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2%। सो इंडिया में जो इन्फ्लेशन का टारगेट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रखा है कि भाई हम अपनी कंट्री में मैक्सिमम इन्फ्लेशन जाएगा 6% तक, मिनिमम 2% तो रहेगा। बिकॉज अगर हम इन्फ्लेशन को 0 कर देंगे तो मार्केट में डिमांड 0 हो जाएगी और डिमांड बहुत कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करेंगी, फिर प्रोडक्शन बंद कर देंगी। प्रोडक्शन बंद करेंगी तो जो लोग वहां पर एम्प्लॉइज हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो लोगों की पॉकेट से पैसा गायब हो जाएगा, बिकॉज सैलरी नहीं आएगी और सैलरी नहीं आएगी तो मार्केट में डिमांड नहीं होगी और डिमांड नहीं होगी तो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी फिर, और फैक्ट्री बंद हो जाएंगी तो फिर अगेन अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो लोगों पर पॉवर्टी बढ़ेगी। तो ये उनका एक डायरेक्ट रिलेशन होता है इन्फ्लेशन और डिमांड का विद द इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में। अब हम चलते हैं परसेंटेज ऑफ नोटा वोट्स डिप्स नेशनली। तो जो नोटा है, नोटा आप जानते होंगे नन ऑफ दी अबव। जो नोटा के वोट्स हैं उनमें कमी आई है। लास्ट जो इलेक्शन था 2019 का 17th लोकसभा का, तो उसमें काफी लोगों ने नोटा का यूज किया था। बट दिस टाइम इन द 2024 इलेक्शन नोटा के जो बटन प्रेस हुए उनमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, कमी आई है। जैसे यहाँ पर अगर आप इलेक्शन देखें, इसके अगर आप रिजल्ट्स देखें तो ये बता रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसमें 0.99% लोगों ने नोटा का यूज किया था, जबकि जो है हाँ इस बार 2024 में इतना जो है यूज हुआ है, जबकि 2019 में 1.06% का यूज हुआ था। हाँ, लेकिन एक अजीब सी बात हमें देखने को मिली है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में नोटा का जो यूज है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और नोटा का अगर इंक्रीज होता है तो दिस इज द इंडिकेशन दैट पीपल फ्रॉम दैट रीजन दे डोंट लाइक ईदर एनी कैंडिडेट। मीन्स अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर अगर नोटा का यूज हुआ है तो इसका मीनिंग है कि वहां के कैंडिडेट्स को ये पांचों ही कैंडिडेट्स पसंद नहीं आए वहां की जनता को, ठीक है। सो ये एक मीन्स अच्छी बात नहीं होती अगर बहुत ज्यादा नोटा का यूज हो।
नेक्स्ट हमारे पास में एक बड़ी इंफॉर्मेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक एडवाइजरी रिलीज की है, कॉल फॉर विजिल अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ H5N1 वायरस ड्यूरिंग बकरीद, बिकॉज रिसेंट अभी आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी आई थिंक 17 ऑफ जून को 16-17 ऑफ जून को आने वाली है बकरीद, जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। इसके अनदर नेम भी है इस्लाम में। अब होता क्या है कि इस बकरीद पर इस पूरे वर्ल्ड में कई मिलियंस ऑफ जो बकरे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी सेक्रीफाइस दी जाती है और उनको फिर खाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने एडवाइजरी रिलीज की है और उन्होंने ये कहा है कि भाई इस बार जो वायरस जो ऑलरेडी चल रहा है एनिमल्स में, दैट इज H5N1 वायरस, और इसके बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस हैं, तो लोगों को इस बार बकरीद पर इन चीजों से बचना चाहिए, उनको प्रिकॉशन लेना होगा। क्या है? अ ग्रुप ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज have alerted the Muslim community across the world to step up vigil against the possible spread of ये देखो ये वायरस जो है, ठीक है। और वो मोस्टली कहाँ पर, एक तो हज अभी चल रही है, ठीक है, तो हज का जो एंड वाला जो वीक होगा उसमें बकरीद होती है, और इस बकरीद का नाम होता है टेक्निकली ईद उल जुहा, जिस पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है, उनका सेक्रीफाइस किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो एडवाइस रिलीज करने वाले कौन है, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि देखो 2 बिलियन मुस्लिम्स रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि सारे के सारे इस बकरीद पर जो है बकरियों को जो है सेक्रीफाइस करते हैं। अबाउट 4 मिलियन मुस्लिम्स विल बी परफॉर्मिंग हज इन मक्का, तो करीब 4 मिलियन पीपल मक्का जाएंगे, तो उनमें कम्युनिकेट हो सकता है डिजीज, और वो इसको इक्वेट कर रहे हैं कि कोविड-19 की तरह, कि भाई देखो कोविड-19 में भीड़ से बचने की जैसे कि एडवाइस हुई थी, वैसे ही हम भी इसको कर रहे हैं। और देयर इज अ रिस्क ऑफ हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन जो है आ जाते हैं कि कौन सा इन्फ्लुएंजा है। उन्होंने इस पर एडवाइजरी रिलीज की है कि पूरा पिलग्रिमेज के लिए, दैट इज स्पेशल फॉर ईद उल अधा के लिए, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि which would be involve sacrifice of approximately 143 million animals. So 143 मिलियन एनिमल्स का सेक्रीफाइस इस पर अराउंड होगा। अब इस पर जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है NM मुजीबुर रहमान, मुजीब रहमान, ये भी मुस्लिम है, साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा और बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर के एक मैगजीन है, वर्ल्ड लेवल की मैगजीन है, दैट इज नेचर मेडिसिन, उसमें उन्होंने क्या किया है? एडवाइस किया है। बाकी इनकी टीम में जिन्होंने ये एडवाइस रिलीज किया है, उन्होंने ये कहा है कि ही सेड द डिटेक्शन ऑफ H5N1, यूएस की जो डेयरी इंडस्ट्री है उसमें ये वायरस मिला है, एशिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री है जिसमें मुर्गी वगैरह वो सब होते हैं, उसमें भी वायरस मिला है, गल्फ कंट्री जैसे ईरान, इराक, यमन वगैरह जो है उनमें भी मिला है, यूरोप की कंट्रीज में भी बहुत सारा मिला है, जिसमें अभी तक 800 केसेस मिल चुके हैं, और इन 800 केसेस में से अभी तक विद हाफ लीडिंग टू डेथ, इट मींस 50% का इसमें हमको क्या मिल रहा है? डेथ रेट मिल रहा है, कि जिसको भी ये हुआ, अगर 800 लोगों को हुआ तो उसमें से 400 लोगों की डेथ कंफर्म हुई है। 2/3 ऑफ दीज केसेस अकर्ड इन द कंट्रीज विद लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशंस। तो डॉक्टर रहमान जो है उनका कहना है कि इसमें से 2/3 जो डेथ हुई है, 2/3, तो 2/3 को अगर हम करेंगे तो मीन 66% अराउंड हो गया। तो बोला जो 400 डेथ हुई है उसमें से 66% डेथ हमेशा वहां पर हुई है जहां पर की मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। उन्होंने क्वेश्चन दिया इसमें, अब कौन कौन सी इस टीम के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, शाह उल एच इब्राहिम है माली से, डॉक्टर रहमान है, इनके अलावा जस्टिन वोंग है ब्रुनेई से, और अलीमुद्दीन जुमला है यूनाइटेड किंगडम से, शेफ एस अल आबरी फ्रॉम ओमान से हैं, अब्दुल्ला ए अल रबी फ्रॉम सऊदी अरबिया से हैं, जायद ए मैमिश फ्रॉम यूएसए। मींस देखो कई बार क्या होता है कि जब ऐसे किसी रिलीजियस फेस्टिवल पर ऐसी कोई एडवाइस आती है तो कई बार ऐसा भी होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जानबूझ करके ऐसी न्यूज को जो है लाया जा रहा है, जबकि ये जो साइंटिस्ट है मोस्टली सारे के सारे कौन है? इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने ये एडवाइस जो है रिलीज किया। उन्होंने ये कहा है कि जैसे कोविड जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था भीड़ में ज्यादा जाने से, अब इन्होंने ये कहा है कि ये जो डिजीज है वो ऐसी है कि वो एनिमल से और ह्यूमन में फैल सकती है और फैल रही है।
उनमें कम्युनिकेट हो रही है ह्यूमन तक. So all over the population all over the world should be very cautious while performing the Bakrid. नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट आता है कि देयर इज नो सच थिंग एज प्रेसिडेंट. अब हुआ क्या है कि अभी पीएम की शपथ लेने वाले हैं मोदी, मींस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं. अब हुआ क्या कि ताइवान के जो लीडर हैं उन्होंने इनको बोल दिया कांग्रेचुलेशंस मोदी जी, ठीक है, ताइवान के. अब चाइना को इस पर दिक्कत हो गई. क्या प्रॉब्लम हो गई? उन्होंने ये कहा कि भाई जो ताइवान है उसमें कोई प्रेसिडेंट तो होता ही नहीं है और वो तो चाइना की टेरिटरी है, वो आपको कैसे कांग्रेचुलेशंस बोल सकता है? इट मींस अगर वो कांग्रेचुलेशंस बोल सकता है तो हम इसका विरोध कर रहे हैं, बिकॉज जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं वो किसी कंट्री के साथ होते हैं और चाइना बोल रहा है कि भाई ताइवान तो कोई कंट्री ही नहीं है. ठीक है, ये हो गया पॉइंट. अनदर पॉइंट हमारे पास में है यमन की जो शिया होती है, शिया कम्युनिटी मींस मुस्लिम्स आप जानते होंगे सुन्नी और शिया. तो ये जो शिया हुतीज हैं, हुती रिबेल्स जो मिलिटेंट्स हैं, इन्होंने 11 एम्प्लॉइज ऑफ यूएन उनको मींस क्या कर लिया है, डिटेन कर लिया है. जो यूएनओ के लिए काम करते हैं, हेल्प वगैरह करते हैं पीपल की, उनको अरेस्ट वगैरह कर लिया है. ठीक है, तो इस पर अब मींस एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि जो लोग यूएनओ के लिए काम कर रहे हैं वो भी सिक्योर नहीं है वर्ल्ड में, उनकी भी सिक्योरिटी रिस्क पर है. ठीक है, सो इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स को ध्यान देना चाहिए. ये आप देख सकते हैं, हुतीज को अगर देखेंगे तो ये है, यहाँ से जो शिप जाते हैं उन पर ही अटैक कर रहे हैं. इतने रीजन पर इन मिलिटेंट्स ने कंट्रोल कर लिया है. बाकी इस यमन में ये जो रीजन आपको दिख रहे हैं, ये वाले लाइन वाले, ये वो रीजन में अभी इन पर डिस्प्यूट है, अभी फाइटिंग चल रही है. ठीक है, ये हो गया. इधर आपका रेड सी हो गया, इधर आपका गल्फ ऑफ अदन हो गई, इधर आएंगे तो इंडियन ओशन का ये पार्ट है. तो ये हो गई आपकी, बाकी इधर कंट्रीज हो गए जिनको हम यहाँ कई बार बोल देते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका. चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम. और क्या इशू है? जापान लॉजेस प्रोटेस्ट ओवर चाइना वेसल्स नियर डिस्प्यूटेड आइलैंड. तो अभी हुआ क्या है कि जो चाइना है वो मींस बदमाशी तो कर ही रहा है चारों तरफ में. तो उसने क्या किया कि चाइना ने अपने कुछ शिप्स, आर्म्ड शिप्स, 4 शिप जो है वो भेज दिए शेंकाकू आइलैंड के पास में. शेंकाकू आइलैंड जो है वो जापान, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, जापान और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, डिस्प्यूटेड आइलैंड है. चाइना कहता है ये हमारा है, जापान कहता है हमारा. अभी करंटली इस पर जापान का ही कंट्रोल है. तो अगर आप बात करें जापान की मेन आइलैंड्स की, तो मेन आइलैंड कौन कौन से हैं जापान के, जो कई बार क्वेश्चन आया है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योशु. ये 4 मेन आइलैंड है. 1, 2 और आपका 3 और 4, ये 4 मेन आइलैंड हैं जापान के. सो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्योशु. तो जो दूसरा मींस जो आइलैंड है जिस पर डिस्प्यूट है, देखो शिकोकू नाम सुनने में एक जैसा लगेगा लेकिन एक्चुअल में वो है शेंकाकू. ठीक है, तो ये तो आपके हो गए यहाँ पर होक्काइडो और ये वाले जो आइलैंड है. ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट आइलैंड है और ये चाइना के यहाँ ताइवान के पास में है. इधर इसका ओकिनावा आइलैंड भी है, किसका है वो भी जापान का है. सो आप देख लीजिए कि कहाँ पर है, ये जो है ईस्ट चाइना सी में है, और अगर बात करेंगे तो पैसिफिक ओशियन में है. तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओकिनावा आइलैंड कौन से ओशियन में है, शेंकाकू आइलैंड कौन से ओशियन में है ना. और अगर आपसे कहूँ तो कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेयर इज लोकेटेड क्यूशु आइलैंड. तो ये भी पैसिफिक ओशियन में है. शिकागो, होन्शु और ऊपर होक्काइडो, ये सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं वो कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन में है. तो आपको इस तरीके के ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजी से भी जो है अवेयर रहना है और उनको थोड़ा सा मैप वगैरह पर देखते रहना है. So guys, we are going to finish today's session and students you are doing well and students जो कमेंट्स में आंसर वगैरह भी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो नोट्स भी अपने बना रहे होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लेकर के. I wish them all the best that you continue like विराट है, सादिया है, ओरिया है, खनक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें जो है कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं करंट अफेयर में. So please carry on, stay motivated and thank you. Bye bye.